السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ نبیہہ قادری NRQ24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو بولنے والا ہر شخص یہ دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ اردو میری زبان ہے، لیکن اس دعوے کو پورا کر دکھانے میں اردو ٹوسٹ ماسٹر کلب دمام کا جواب نہیں۔ پچھلے 7 سالوں سے اردو ٹوسٹ ماسٹر کلب بخوبی ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ اس سال بھی ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر اردو ٹوسٹ ماسٹر کلب کی جانب سے 7ویں سالگرہ 7th اینیورسری منائی گئی۔ اردو ٹوسٹ ماسٹر کلب ہر سال ایک منفرد انداز میں جشن کا اہتمام کرتا ہے تاکہ لوگ نہ صرف اردو کی شیرینی سے لطف لے سکیں بلکہ اردو کی ترقی کا بھی حصہ بن سکیں۔ اردو ٹوسٹ ماسٹر کلب نے پچھلے سال تمثیلی مشاعرہ پیش کیا اور اس سال صرف خواتین کے لیے مشاعرہ منعقد کیا۔ اسی کی تفصیلی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب کے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میری ان سے ادباً گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، اور جو حضرات باہر ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے اور ایک چند لمحوں میں پروگرام بس ابتدا ہونے والی ہے، شروع ہوا چاہتا ہے، لہٰذا آرام سے سیٹل ہو جائیں اپنی اپنی نشستوں پر، اور ایک رنگا رنگ پروگرام کا آغاز ہونے والا ہے، ابتدا ہونے والی ہے۔ ایک چند لمحوں کے اندر ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آپ سب کی آمد کا، آپ سب کی تشریف آوری کا اور اس میں پورا حصہ لینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے، بہت شکریہ۔ انتہائی نگارش یہی ہے، میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں اعزاز الحق آج کے اس خصوصی اجلاس کا منتظم اعلیٰ ہوں۔ آج کے اس خصوصی اجلاس میں آپ سب مہمانان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام اردو ٹوسٹ ماسٹر کے بینر تلے ہے۔ اردو ٹوسٹ ماسٹر ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جہاں انسان اپنی قائدانہ صلاحیت کو نکھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ ٹوسٹ ماسٹرز کے اصولوں کے مطابق ہم یہاں 3 طرح کے موضوعات سے اجتناب کریں گے: سیاست، مذہب اور جنس۔ ہال میں پیچھے کی طرف 2 ٹوائلٹس موجود ہیں، پہلا خواتین کے لیے ہے اور دوسرا آپ سب حضرات کے لیے۔ ایک ایمرجنسی ایگزٹ بھی آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہے، ضرورت پڑنے پہ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سب حضرات کو کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہو تو آپ کسی بھی ٹوسٹ ماسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹوسٹ ماسٹرز کے گلے میں ایک کارڈ ہے، اسے دیکھ کے پہچان لیں۔ آپ سب لوگوں سے پرخلوص گزارش ہے، مخلصانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ پروگرام کے دوران اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے رہیں، کسی طرح کی کوئی چہل قدمی نہیں کریں تاکہ پروگرام احسن طریقے سے چل سکے اور کسی طرح کا کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ میں آپ سب کا مزید وقت نہ لیتے ہوئے اپنے کلب کے صدر ٹوسٹ ماسٹر فرید حسین خان کو ایک شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آپ بھی نہ سکوں۔ آپ کی زوردار تالیوں میں ٹوسٹ ماسٹر فرید حسین خان۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ
हजरात रियाद, अलहसा, रासुल खैर, जुबैल, दमाम, अलखबर से तशरीफ़ लाए हैं। कई मेहमान हमारे लंबी मुसाफत तय करके आए हैं। उर्दू टोस्टमास्टर क्लब आपके इस ताउन का बेहद मशकूर है। उर्दू टोस्टमास्टर्स क्लब को मारिद वजूद में आए हुए 7 साल हो चुके हैं। आज हम अपने जश्न यौम तासीस मना रहे हैं। इन 7 सालों में हमने बहुत कामयाबियां समेटी। क्लब के तकरीबन 40 अरकान ग्रेजुएशन मुकम्मल किए। उसमें मेरे पास कुछ आदद व शुमार हैं। तकरीबन 40 मेंबरान, 40 अराकीन ने सीसी मैनुअल, जो हमारा एक तरीक़ेकार है टोस्टमास्टर्स का तालीमी, वो मुकम्मल किए। एडवांस मुकम्मल किए तकरीबन 24 अफराद ने, 24 अराकीन ने। इसके अलावा हमारे क्लब से जो टोस्टमास्टर्स का आला तरीन एजाज है, DTM, डिस्टिंग्विश्ड टोस्टमास्टर्स, ये हासिल करने में हमारे किसी भी रुकन को कई साल लग जाते हैं। वो अभी तक हमारे क्लब के जो पहले सदर जनाब नईम जावेद साहब थे, उन्होंने हासिल किया, और हमारे क्लब के 3 DTM शिप का एजाज हासिल करने वाले हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इजलास की कार्रवाई एक ऐसी शख्सियत जो उर्दू क्लब की आन बान शान है, एक खूबरू नौजवान, एक चैंपियन स्पीकर, पढ़ते हुए शायर, आज की शाम को यादगार बनाने के लिए वो बेचैन हैं। मैं दावत देता हूं टोस्टमास्टर जनाब मोहम्मद अनसुद्दीन साहब। कौन है जो मुझे ऐसे खोल रहा है, मुझ में है मगर से अलग बोल रहा है। ये कौन है जो मुझे ऐसे खोल रहा है, मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। अब इस शहर में मैं बोलूं तो मेरी कौन सुनेगा, हर शख्स यहां उर्दू जुबान बोल रहा है, हर शख्स यहां उर्दू जुबान बोल रहा है। हाजरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा इदारे उर्दू टोस्ट मास्टर्स के तमाम अराकीन को, बिलखुसूस इस खुसूसी इजलास के तमाम मुंतजमीन को, जिनकी अनथक काविशों के बाइस हर साल की तरह इस साल भी हम आपके लिए यादगार, शानदार और तारीखी महफिल सजा पाए हैं। वहीं इदारे उर्दू टोस्ट मास्टर्स के तमाम अराकीन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जुमा होने के बावजूद छुट्टी का दिन छोड़कर इदारे उर्दू टोस्ट मास्टर्स की दावत पर आपने यहां मौजूद होकर न सिर्फ हमारी हिम्मत अफजाई की है, बल्कि आपके दिलों में, जहनों में जो उर्दू जुबान के लिए इज्जत, उल्फत, मुस्बत सोच और जो फरोख्त एहसास है उर्दू जुबान को बढ़ावा देने का, वो यकीनन काबिल तारीफ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहां से लेकर वहां तक, और ऐसा लगे कि हम लोग उस यादगार लम्हों से जुड़ने वाले हैं जिसका हम सभी को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजरीन, हम सभी जानते हैं कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं या फिर जितनी भी कामयाब आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियतें हैं, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आज उन्होंने दुनिया में जो आला मकाम हासिल किया है, उसमें सबसे अहम किरदार रहा है उनकी मादरी जुबान का।
वहीं तारीख गवाह है कि जिस कौम ने भी या जिस किसी ने भी अपनी मादरी जुबान को नहीं अपनाया, दुनिया में आज उनका वजूद बिल्कुल ना के बराबर है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे बेशुमार अफराद से मिलते हैं जिनमें काबिलियत और सलाहियतें कूट कूट कर भरी रहती हैं, लेकिन खुद एतमादी की कमी के बायस वो जिंदगी में कई मर्तबा नादिर मौका मिलने के बावजूद उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, जिसकी वजह से या तो वो पीछे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या फिर मायूसी के अंधेरों में खो जाते हैं। हम एक ऐसे दौर जी रहे हैं जहां अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा तसव्वुर करना बहुत मुश्किल से मयसर हो रहा है। वहीं इदारे उर्दू टोस्ट मास्टर्स की पिछले 7 साल से ये कामयाब कोशिश रही है कि हम आपके अंदर जो छुपा हुआ फंकार है, जो आपके अंदर छुपी हुई तकरीरी सलाहियतें हैं, जो कायदाना सलाहियतें हैं, उसे हम आपसी ताउन से ना सिर्फ निखारते हैं, संवारते हैं, बल्कि इस तरह की महफिलों का इनेकाद करते हुए हम उन अराकीन को वो भरपूर मौका फराहम करते हैं जहां से वो अपनी कायदाना और तकरीरी सलाहियतों का मुजाहरा दुनिया के सामने कर सकें। अब मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर मुस्तकबिल के उस उभरते हुए सितारे को पेश करने जा रहा हूं जिनकी खुद की ख्वाहिश है कि आगे चलकर जमाना उन्हें इस बात से पहचाने कि वो एक शोला बयान मुखर्रिर हो। जब भी इन्हें वक्त मिलता है वो तस्वीर बनाती हैं और उसमें रंग भरती हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि जिंदगी हसीन है, रंगीन है, जिंदगी गुलजार है कि उसे उस तरीके से जिया जाए। जिस कमसीन तालिबा को मैं आपके बीच बुलाने जा रहा हूं, ये अभी 5वीं जमात में है, लेकिन अभी से आप देखें इनका हौसला, इनकी सोच और इनमें कितनी खुद एतमादी है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए दोस्तों आज की पहली मुहर्रा मोहतरमा हमना उस्मान से कि वो यहाँ तशरीफ लाए और बताएं सामाइन को कि क्या फर्क होता है एक टोस्ट मास्टर में और एक जो टोस्ट मास्टर नहीं है। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह ने बहुत अजीब और गरीब ख्वाब देखा। वो बहुत परेशान हुआ और उसने अपने वजीर को हुक्म दिया घर से ख्वाबों की ताबीर करने वालों को बुलवाया जाए। सब माहिर जमा हुए और बादशाह ने अपना ख्वाब उनके सामने कुछ इस तरह बयान किया। मैं बिल्कुल सही सालिम अपने तख्तार पर बराजमान हूँ कि अचानक यके बाद दीगरे मेरे दांत गिरने शुरू हो गए, यहाँ तक कि मेरे मुंह में एक भी दांत ना रहा। पहले ताबीर करने वाले ने बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ कि आपके तमाम बच्चे आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे और इस सदमे से बाद में आप भी वफात पाएंगे। ये सुनकर बादशाह ने बहुत गुस्से और परेशानी से चीखा, इस माबर को मेरी आंखों के सामने से दूर ले और जेल में डालो। उसके बाद बादशाह एक जगह बैठा अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने दूसरे माबर को कहा कि वो उसकी ख्वाब की ताबीर करे, जो कि कुछ ऐसी थी। बादशाह सलामत, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। इसकी ताबीर ये है कि आप निहायत लंबी उम्र पाएंगे और अपनी आखिरी औलाद की भी तमाम खुशियां देखेंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और बादशाह ने उस शख्स को इनाम और इकराम से नवाजा। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर एक अहम नुक्ता है। दोनों अफराद ने जो ख्वाब की ताबीर बताई उसका मफहूम एक जैसा था, लेकिन एक को अल्फाज के गलत इस्तेमाल की वजह से सजा, जबकि दूसरे को हिकमत और दनाई से बेहतरीन अल्फाज के चुनाव की वजह से इनाम और इकराम से नवाजा। इसलिए हमें चाहिए कि अल्फाज का चुनाव हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि इससे इंसान की शख्सियत, तरबियत, मिजाज, यहाँ तक कि खानदान का भी पता चलता है।
اچھے اور خوبصورت الفاظ ان چابیوں کی مانند ہیں جن سے آپ لوگوں کے دلوں کے بند دروازے کھول سکتے ہیں۔ کبھی بھی کسی لفظ کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ ننھے ننھے لفظ بڑے بڑے گھاؤ کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ الفاظ ہماری دسترس میں تب تک ہیں جب تک ادا نہ کرے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ انہیں نکھار کر پھولوں سا معطر بنا دے یا جلے ہوئے انگاروں کی شکل میں کسی کو جلا کر خاکستر کر دے۔ آخر میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں کچھ خوبصورت دعائیہ الفاظ پیش کرتی ہوں۔ دعا کی صورت میں ان کی خاطر جو میرے ہونٹوں سے لفظ نکلے، جو میری آنکھوں سے اشک نکلے، انہی کے بدلے میں اے خدایا جب بھی ان کا نصیب لکھنا، عروج لکھنا، کمال لکھنا، کبھی نہ حرف زوال لکھنا۔ شکریہ۔ تہذیب حافی کے اس شعر سے کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، منصور بھائی تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا۔ استقبال کرتے ہیں محترمہ مسرت فرید مسرت صاحبہ۔ پیار ہو جائے تو پھر پیار کو ہو جانے دو، اس کو ہونا ہے تو ہو جاتا ہے، ہو جانے دو۔ واہ، مجھ سے ناراض نہیں ہونا کسی بات پہ تم، رہنے دو چھوڑو بھی، رہنے دو چھوڑو بھی یہ بات، چلو جانے دو۔ تم نے اظہار محبت تو کیا بھول سے ہی، تم نے اظہار محبت تو کیا بھول سے ہی، بھول ہو جائے تو اس بھول کو ہو جانے دو۔ واہ واہ واہ۔ دوستو یہ تکرار چلتی رہے گی۔ میں اگلے شاعر کو دعوت دیتا ہوں۔ میری فہرست میں اگلی شاعرہ ہیں جن کے تعارف میں یہ بات ضرور کہوں گا، گو کہ میں دبستان سازی کا بذات خود قائل نہیں ہوں، لیکن اگر دور حاضر میں دبستان سازی ہوتی تو آپ لوگ اس بات کو مانتے کہ اس دور میں اردو زبان کی خدمت جتنی سرزمین پنجاب نے کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں اس موقع پر سرگودا پنجاب کی نمائندگی کر رہی ہیں ہمارے اس محفل میں، ہمارے اس مشاعرے میں، محترمہ آسیہ ناز صاحبہ بہت خوب کہتی ہیں، ولولہ انگیز مقرر بھی ہیں، پر بھی ہے، اس کلب کو جوائن کیا، اس کلب کی شمولیت اختیار کی، اس کلب میں لے آئی ہیں۔ آئیے اس موقع پر میں ان کا استقبال کرتا ہوں، محترمہ آسیہ ناز۔ میں کیا ہوں، میری حیات کیا ہے، میں کیا ہوں، میری حیات کیا ہے، درد کے اس نگر میں میری اوقات کیا ہے، درد کے اس نگر میں میری اوقات کیا ہے، یہ زندگی تو کوئی بلبلا ہے پانی پر، کیا کہنا، یہ زندگی تو کوئی بلبلا ہے پانی پر، یہاں ملا کسی کو بھی ثبات کیا ہے، یہاں ملا کسی کو بھی ثبات کیا ہے۔ اب ایک ادنا سی کاوش آپ سب کی پیش خدمت ہے، غزل مطلع عرض ہے۔ کہیں یہ کیسے، کہیں یہ کیسے ہمیں تم سے پیار نہیں، کہیں یہ کیسے ہمیں تم سے پیار نہیں، اب اپنے دل پر مگر اختیار نہیں، اب اپنے دل پر مگر اختیار نہیں، زندگی اپنی بخش دی تجھ کو، زندگی اپنی بخش دی تجھ کو، تیری یادوں کو پھر کیوں قرار نہیں، تیری یادوں کو پھر کیوں قرار نہیں، تجھ سے یہ شہر دل مہکتا ہے، تجھ سے یہ شہر دل مہکتا ہے، مشک و عنبر کا کاروبار نہیں، کیا کہنا، واہ واہ واہ، تجھ سے یہ شہر، واہ واہ واہ، تجھ سے یہ شہر دل مہکتا ہے، مشک و عنبر کا کاروبار نہیں۔ شعر کا ہے بھائی، واہ واہ واہ، شکریہ۔ دل بے تاب سے یہ دھواں کیسا،
दिले बेताब से ये धुआं कैसा, जबकि जज्बों में अब शरार नहीं। क्या कहना, वाह वाह दिले वाह। बेताब से ये धुआं कैसा, जबकि जज्बों में अब शरार नहीं। लाशाए दिल तो जलता बुझता है, क्या मिसरा है, लाशाए वाह वाह दिल वाह। तो जलता तो जलता बुझता है, इश्क जा तेरा एतबार नहीं। क्या कहना भाई, फिर बताओ, वाह 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 वाह। इश्क जा तेरा एतबार नहीं, रूबरू है वो और हाय बेचैनी, रूबरू है वो और है हाय बेचैनी, दिले बदबख्त क्यों तुझे करार नहीं। क्या कहना भाई, बहुत अच्छा शेर है भाई, इस्तकबाल कीजिए भरपूर शेर का भाई, वाह 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 वाह। रूबरू है वो, दिले बदबख्त का जवाब नहीं, वाह वाह वाह। रूबरू है वो और हाय बेचैनी, दिले बदबख्त क्यों तुझे करार नहीं। जिसमें गुल मख्तर्ज है, जिसमें गुल दिल के सब महकते थे, जिसमें गुल दिल के सब महकते थे, नाज वैसी अब बहार नहीं। वाह। कहें ये कैसे हमें तुमसे प्यार नहीं, अब अपने दिल पर मगर इख्तियार नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं इस मौके पर रामपुर की नुमाइंदगी कर रही हैं, रामपुर यूपी की नुमाइंदगी कर रही हैं मोहतरमा ज़ैनब सुहेल। ज़ैनब साहिबा, मैं उनके बारे में अक्सर ये कहा करता हूं, क्योंकि वो फारसी जानती हैं उर्दू जबान के साथ साथ फारसी और अरबी, ये दो जबानों का जो आमेजिश उर्दू जबान में है। अरबी जबान ने उर्दू को गहराई अता की, तो फारसी जबान ने उर्दू को हुस्न अता किया है। ये हुस्न मोहतरमा ज़ैनब सुहेल ज़ैनब की शायरी में आपको मिलेगा। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। वाह। अब मैं आपके सामने चंद अशआर पेश कर रही हूँ, आपके तवज्जो चाहती हूँ। मेरा दिल तोड़ने वालों मुझे भी दर्द होता है, मेरा दिल तोड़ने क्या वालों मिसरा है, वाह। मुझे भी दर्द होता है। ये आंखें मुस्कुराती हैं मगर दिल मेरा रोता है। वाह 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 वाह। जहां एहसास होता है वो रिश्ता खास होता है, जहां एहसास होता है वो रिश्ता खास होता है। कली उल्फत की खिलती है, हंसी गुलजार होता है। कदम आगे बढ़ाती हूँ, जमाना रोक लेता है। कदम आगे बढ़ाती हूँ, कहना, वाह वाह वाह। जमाना रोक लेता है। मुझे माँ की दुआ से खुद किनारा ढूंढ लेता है। क्या कहना, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा शेर है, वाह वाह वाह। तुम्हारी हर अदावत का बदल हमको भी आता है, तुम्हारी हर अदावत का बदल हमको भी आता है। सितम की तीरगी में दिल मोहब्बत ढूंढ लेता है। क्या कहना, क्या कहना। आइए आगे बढ़ते हैं। शायरात की फहरिस्त में आखिरी शायरा मोहतरमा गजाला कामरानी। ये नाम मंतिक़े शर्क़िया ही नहीं, सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि खलीजी ममालिक के लिए भी कोई नया नाम नहीं है मुशायरों के हवाले से। बहुत ही कम वक्फे में मोहतरमा कामरानी ने जो अपना मकाम बनाया अपनी शायरी के जरिए, उनका ताल्लुक एक इल्मी अदबी घराने से है। बहुत उम्दा शेर कहती हैं। इस्तकबाल करते हैं मोहतरमा गजाला कामरानी साहिबा। एक मतला और एक शेर आप सबकी समातों की नजर है। तवज्जो चाहूंगी कि आईना सच दिखा रहा है मुझे, आईना सच दिखा रहा, आईना सच दिखा रहा है मुझे, वक्त हर लम्हा खा रहा है मुझे। क्या कहना, वाह वाह वाह। आईना सच दिखा रहा है मुझे, वक्त हर लम्हा खा रहा है मुझे। और रात का ये मुहीब सन्नाटा, रात का ये मुहीब सन्नाटा इस कदर क्यों डरा रहा है मुझे। रात का ये मुहीब सन्नाटा इस कदर क्यों डरा रहा है मुझे।
आईना सच दिखा रहा है मुझे, वक्त हर लम्हा खा रहा है मुझे। हौसला गर जवान है प्यारे, क्या कहना, क्या कहना। हौसला गर जवान है प्यारे, तेरा सारा जहान है प्यारे। क्या कहना भाई, हौसला वाह, वाह, वाह। गर जवान है प्यारे, तेरा सारा जहान है प्यारे। कितनी मुश्किल है जिंदगी है दोस्त, हर दम एक इम्तिहान है प्यारे। वाह। कितनी मुश्किल है जिंदगी है दोस्त, हर दम एक इम्तिहान है प्यारे। हौसला गर जवान है प्यारे, तेरा सारा जहान है प्यारे। अब एक गजल आप सबकी समाअतों की नजर है, तवज्जो चाहूंगी। अता हो। मतलब पेश खिदमत है कि इस सलीके से दर्द ढोना है, इस सलीके से दर्द ढोना है, इस सलीके से दर्द ढोना है, आंसुओं से गमों को धोना है। वाह 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 वाह। इस सलीके से दर्द ढोना है, आंसुओं से गमों को धोना है। और मसूद जमाल के लिए शेर है, और तुम एक शरीर बच्चे हो, और तुम एक शरीर बच्चे हो, मेरा दिल कांच का खिलौना है। क्या कहना भाई, अच्छा शेर का है। वाह 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 वाह। और तुम एक शरीर बच्चे हो, वाह वाह मेरा वाह। दिल कांच का खिलौना है। और मुजफ्फर साहब जी के देखो जरा दिलेरी से, वाह 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 वाह। ये मैंने दूसरे मिसरे सानी पे गिरा लगाई है कि जी के देखो जरा दिलेरी से, जो भी होना है वो तो होना है। वाह वाह वाह। वो जीते हैं भाई दिलेरी से। ये असल में वाजदा तबस्सुम की गजल पे की जमीन पे मैंने गजल कही है। हाँ, बहुत दिलेर है ये वैसे। और ये शेर बहुत अहम है कि कैद में काटे जिंदगी के जो पल, कैद में काटे जिंदगी के जो पल, उनका कैसे मदावा होना है। वाह। कैद में काटे जिंदगी के जो पल, उनका कैसे मदावा होना है। और आप सबके लिए एक शेर है कि ओढ़ कर क्यों गुरूर फिरते हो, ओढ़ कर क्यों गुरूर फिरते हो, ओढ़ कर खाक सबको सोना है। क्या कहना, वाह 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 वाह। ओढ़ कर क्यों गुरूर फिरते हो, खाक सबको सोना है, ओढ़ कर शेर दिया है खाक महफिल को। वाह वाह वाह। सबको सोना है। वाह वाह वाह। अगला शेर आप सबकी समातों की नजर है कि पहले घायल किया है तुमने मुझे, क्या कहना। पहले घायल किया है तुमने मुझे, अब नमक का दिया बिछाना है। पहले घायल किया है तुमने मुझे, अब नमक का दिया बिछाना है। और नरसिम्हा राव साहब मुझे नजर आ गए हैं, आपके सामने एक शेर फेंकती हूँ कि दिल की धरती को थोड़ा नर्म करो, दिल की धरती को थोड़ा नर्म करो, प्यार का बीज इसमें बोना है। क्या कहना, वाह 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 वाह। दिल की धरती को थोड़ा नर्म करो, प्यार का बीज इसमें बोना है। मौत आए तो आएगी कैसे, क्या कहना। मौत आए तो आएगी कैसे, बंद जिंदा का कोना कोना है। क्या कहना, क्या कहना। मौत आए तो आएगी कैसे, बंद जिंदा का कोना कोना है। और आखिरी शेर आप सबकी समातों की नजर है, हुए रुखसत तो भीगे थे मिशगां, हुए रुखसत तो भीगे थे मिशगां, आंसुओं में मुझे डुबोना है। वाह 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 वाह। हुए रुखसत तो भीगे थे मिशगां, आंसुओं में मुझे डुबोना है। इस
सलीके से दर्द ढोना है, आंसुओं से गमों को धोना है। इसी के साथ मैं सैयदा नबीहा खादरी NRQ24 न्यूज़ से इसी तरह हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए और YouTube पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।